Hi everyone, second. A very good evening. Hello everyone. A very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत नमस्कार, bonjour, आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में. आज हम करने वाले हैं हमारा फेडरलिज्म का चैप्टर शुरू and today's topic is going to be the features and different types of federalism. So let's get started. Please let your friends know as well that the session is here and they should come and join the session. Share the link with them if necessary. And let's begin without any further ado. So, as I told you, we are going to get started with features and the various types of federalism. So, we'll start with a quick introduction about me. Hi everyone, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपके expert for social sciences at Imbibe, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. I have done my studies in the field of humanities and hence I specialize in English and social science. Now, just please let me know if you've done your pre-work or not. For the students who are not aware about it, guys, we shared a certain amount of videos or certain reading materials before the session with you to prepare you better and well in order to ensure that you are already informed and kind of, aware of what we are going to do and have a context so that your understanding of the concepts is at a deeper level. So please always ensure to have one pre-read before you come to the session because that really helps in getting engaging with the concepts much better. Now the good news is that we had already launched our first batch for class 10th on 12th of April. We have launched our second batch on 20th of May where Vishal sir is taking maths. I'm doing social science entirely and Akshay sir will be taking your entire science with more than almost 800 hours of live session with your mid-semester midterms revision, final boards revision, mock tests, tests being exactly analyzed not just on the basis of numbers but the behavioral patterns, and you get your analysis and test score because the more tests you take, the more practice you have, the better is your preparation in general. And you also have the provision of resolving your doubts 24/7, which means that if you are not, let's say, able to resolve your doubts during the session in the live classes, then you can always get back whenever you're doing your self study and you get stuck on something. It should not stop you from getting your doubts resolved immediately because it is a possibility that you're studying maybe later in the evening or early in the morning or maybe in the afternoon when the session is not happening. You can get your doubts resolved with our doubt solving feature. एंड क्लास 10th में हमें ई बुक्स भी चाहिए होती हैं. बेसिकली हमें बुक्स चाहिए होती हैं, रेफरेंस बुक्स चाहिए होती हैं. वी एंड अप परचेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट दैट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. इफ यू रियली नीड अ फिजिकल बुक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई बिफोर बाइंग इट because you have almost 80 books as in the electronic form available for you on Imbibe platform, which comes along with the subscription and the 3D learning videos, which enhances your learning experience, makes it really interactive, and the number of questions that you have for practice, more than 95,000, and number of questions with tests, क्या ही बोले उसके बारे में, वो तो और भी बहुत ज़्यादा है. So it just makes your whole journey really interesting and full of different materials which comes as a package and you don't have to do a lot of investment. Now when you buy the subscription, if you're doing it for just 1 month, it will cost you $6.99, but if you go with an annual subscription, which you can also use to start your preparation for 11th just in case you finish your 10th, then it'll just cost you $4.99 per month and you have 3 days of unlimited trial. The best part is that we have various offers going on, and right now I mean, for example, from 20th to 23rd May, bio 25, if you apply the code, you get additional 25% off on this price for the annual subscription. So make sure you at least know you are circulating this news for your friends who maybe want to join this further ahead. And what you get as an option with all of this is Imbibe Learn videos and doubt resolution, practice, test, achieve journey, where you can strategize your own,
प्रिपरेशन ऑफ सर्टन सेट टारगेट, बिकॉज नॉर्मली हमारे लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना, स्केड्यूल प्रिपेयर करना, उसे स्टिक करना वो डिफिकल्ट रहता है. आप वो भी कर सकते हो. एंड दिस होल सब्सक्रिप्शन कम्स विद अ पैकेज ऑफ इम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, 10th में प्रैक्टिकल्स हम पहली बार असेस होगा हमारा, बोर्ड्स के लिए एक्सटर्नल आएंगे, वाइवा लेंगे. सो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. स्कूल में करने के बाद घर पे आके भी आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो लैब एक्सपेरिमेंट्स के साथ. एंड इफ यू जस्ट लुक एट इट, इट्स जस्ट अमेजिंग. And the best part of the subscription is that it's a single subscription for unlimited exams. What we mean by that is that you are able to basically go ahead with the preparation of your exams. It doesn't matter if it's for you or your siblings. आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसमें आप 10th, 9th, 11th, 12th, JEE, NEET, 6th, 7th, 8th जिस भी चीज का कंटेंट और क्लासेस अवेल करना चाहते हो आप सब कर सकते हो सिंगल सब्सक्रिप्शन में, just at this price. And that's, I think, really is amazing. So when you do your pre-class and post-class activity that we share with you along with the live class, the improvement for that particular topic is of 12.62 percentage in your score. That's what we have assessed with proper data and evidences. So that is why all of these activities are really important. Now, as I told you, we are getting started with the chapter of federalism, which can be divided in the topics of features and the types of federalism, India as a federal country, practice of federalism in India, and decentralization in India. Our topic for today is features and types of federalism, under which we are going to understand what is unitary system of government, what is properly federal system of government, the key features of federalism, and kinds of federations. Now, federalism is not absolutely an alien concept to us or 100% new to us, because some part of it we have already had a glimpse of in our previous chapter of power sharing. Power sharing में आपको याद होगा हमने vertical type of form of power sharing करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि there is a hierarchy and you have central government, you have provincial government, you may have some other different types of government also, but it's basically where the power is divided at different various levels of government. This is exactly what this chapter is about, just that concept is going to be dwelt with much more in detail in this chapter. So let's get started. Now, your books may seem boring and black and white, and a lot of times it happens with me, even despite of being a teacher, that when I sit and read, I feel like, falling asleep. It's not very interactive. It's not, you have to stay very motivated by yourself to do the read and understand everything. Reading cannot be replaced, but can definitely be made more interactive and much more interesting, where you can bring your books alive with 3D images, 2D images, and videos and whatnot. And that is what exactly Imbibe Lens helps you do. You just have to scan the text that you're reading, and it will pop up with all the keywords automatically. It will highlight it on the text. You can just pick up the keyword that you want to learn about, and everything and anything related to that will be suggested to you in forms of videos and 3D images that you can interact with, that you can learn from. And I think that's an amazing feature, because हम कभी कहीं पे अटकते हैं या किसी चीज के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली जाकर गूगल करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, या कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है या टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. with Imbibe Lens, that completely gets eliminated. That's the beauty of it, right? Okay, so we'll start with 3 questions, as we always do. So the very first question is going to be, what is federalism? So right now itself, I've explained to you, I have reminded you as well, right, दैट फेडरलिज्म जो है हमने प्रीवियस सेशन में भी किया है, और मतलब प्रीवियस सेशन में नहीं, प्रीवियस चैप्टर में भी किया है, पावर शेयरिंग में भी किया है. तो वहां से आप गेस जरूर कर सकते हो कि क्या ये एक सिस्टम है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, एक सिस्टम है जहां पावर सेंटर और स्टेट में शेयर होता है, एक सिस्टम है जहां पे लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, या एक सिस्टम है जहां पे किसी कोई स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है. सो दीज आर योर ऑप्शंस. प्लीज थिंक अबाउट इट, गो अहेड एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन. Hi, Ahem, student Ishwari Gaurangi. Very good evening. Very warm welcome. I hope that you guys have, you know the answer and you're doing well. And also just like make sure that you attempt the question.
Wonderful, wonderful, amazing, Gaurangi. All the students, guys, just make sure that you do edit your name so that I know who I'm talking to. Ishwari, very nice. The correct answer would be a system where power is shared between the central and the state government. Amazing. Moving on to the next question. What is the main purpose of having a federal system in a country like इंडिया इंडिया जैसे देश में आपको क्यों लगता है कि हमें एक फेडरल सिस्टम की जरूरत होगी बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू स्लाइटली इन पावर शेयरिंग इज वेल दैट फेडरलिज्म इज नॉट रियली एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी राइट तो इंडिया में हमें क्यों जरूरत होगी उसके बारे में अगर आप सोचो तो आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस बात की So I will not dwell into a lot of detailed explanation in the solutions because हम इसको चैप्टर में वैसे भी आज रिवाइज करेंगे एंड बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं हो लेकिन विद द सेशन टुडे हो जाएंगी सो दैट्स द रीजन आई विल नॉट dwell into the solution much in detail. Okay, looking at the correct answer, it will be to accommodate the regional diversity and ensure local governance, right? Gaurangi, student, very, very good. So, regional diversity को हम accommodate करना चाहते हैं. One last question. In the context of federalism, what does the term dual government refer to? Dual government से हमारा क्या मतलब है और federalism के concept के around इसका क्या meaning और significance हो सकता है? Okay, wonderful. Great. Ahem Gaurangi, everybody, very, very nice because I don't have all the names. So I'm just going to say all the students, superb. It will be coexistence of central and state government with defined powers. ठीक है? Superb. तो शुरू करते हैं चैप्टर और समझते हैं कि क्या क्या चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या समझने वाले क्योंकि फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमने पहले ही पावर शेयरिंग में ले लिया है इस वाले चैप्टर में हम थोड़ा ड्वेल इन करेंगे ऑफ कोर्स डेप्थ में ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे मतलब बाकी पावर शेयरिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे बट डिफरेंट लेवल्स की एप्लीकेशन क्या है क्या नेसेसिटी है कैसे हमारी मदद हो रही है क्यों कुछ कंट्रीज में होती हैं और कुछ कंट्रीज में नहीं होती हैं ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो लेट्स ड्वेल एंड डिग मच डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग सो चाइना जापान फ्रांस यूनाइटेड किंगडम इन सारे कंट्रीज में ना एक चीज बहुत कॉमन है अब आप सोचोगे क्या ये डेमोक्रेसी है तो लेट मी टेल यू कि चाइना इज नॉट रियली अ डेमोक्रेसी मे क्लेम टू बी वन ठीक है बाकी आप ये सोच सकते हो कि क्या ऐसा है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है में डिफरेंस है तो चाइना में यूएस में फ्रांस में अलग अलग है तो आप आखिर इन कंट्रीज में कॉमन क्या है इन कंट्रीज में कॉमन ये है बच्चे कि इनके यहाँ डिविजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स नहीं है
अब उसे यूनिटरी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे आज और डिटेल में, बट इन सिंपल वर्ड्स इनके यहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है। तो आखिर एक देश में कितने सिस्टम हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, हाउ डू दे मैनेज व्हेन दे हैव वेरियस सिस्टम, बिकॉज पावर शेयरिंग ऑल्सो हैज इट्स limitations not in terms of that it doesn't bring only good, limitations in terms of handling the conflicts। जब पावर डिवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा इशू क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ, यस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, ठीक है, आपका यूके में लेबर पार्टी एंड दिस अदर पार्टीज देयर, तो टू पार्टी सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉमनैलिटी है वो है कि यहाँ पे पावर डिवीजन अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट का नहीं किया हुआ है ना, ठीक है बच्चों। तो हम आगे पढ़कर समझते हैं कि आखिर ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं कंट्रीज लाइक देम, एंड व्हाई डू दे नॉट नीड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, व्हाई इन कंट्रीज लाइक इंडिया नीड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई बेल्जियम नीडेड डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो स्मॉल। Is it not affecting the democratic setup of a place? Can a country which is not democratic, क्या एक नॉन डेमोक्रेटिक नेशन भी फेडरल हो सकता है? अलग अलग तरह के सवाल है जो कि हमारे इस चैप्टर को पढ़कर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन and understand what do we understand by these various things, okay? Guys, just give me 1 second. I'll be back in 1 second, okay? Not 1 second, like 1 minute. Give me 1 minute. ओके, सॉरी, एंड आई एम बैक। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, समझ करके कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं। मैं आपको पहले समझाऊंगी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से समथिंग इज लाइक अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि इट्स नॉट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, इट्स नॉट रियली एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर अस। इट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, इट इज समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, ठीक है। तो उसको हम फर्दर अब जो है सेट करेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे कि जब हम कह रहे हैं कि फेडरल सिस्टम है तो वो क्या होता है, कहाँ कहाँ किन किन देशों में अप्लाइड है। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये बात बोल दी है अब तक। सो आई होप दैट व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन अराउंड इट, you will be able to make sense of what we are trying to say, what exactly are we trying to mean when we are trying to say this, and so on and so forth, okay? चलो, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से चलती हूँ। हमने पिछले चैप्टर में बेल्जियम के बारे में बात की थी, हमने पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग के श्रीलंका के बारे में बात की थी। अब हमने वहां पे ये देखा था कि उन्होंने उस डिफरेंस को, जो उनकी डाइवर्सिटी थी और उस डाइवर्सिटी की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको हैंडल कैसे किया।
तो हमने देखा कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, ठीक है, उन्होंने अपने पावर को गवर्नमेंट की एक जगह पे इंटैक्ट नहीं रखा, उन्होंने उस पावर को डिवाइड किया, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि उनका अलग अलग लेवल पे डिफरेंस था, है ना, उनका एक रीजन, एक प्रोविंस आप कह सकते हो, वन पार्ट ऑफ द कंट्री वाज डच डोमिनेटेड, इंटायरली डच, मोस्टली डच रह रहे थे, एक हिस्से में जर्मन्स रह रहे थे, एक हिस्से में आपके वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन वाला जो था हमारा, एक हिस्से में फ्रेंच रह रहे थे। फिर जब ओवरऑल पॉपुलेशन हम देखते हैं तो हम देखते हैं डच ज्यादा है, यानी कि सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वहां पे जब वो पूरे जनता को मॉनिटर करेगी, गवर्न करेगी, तो उनमें डच ज्यादा होंगे। वहीं पे ब्रुसेल्स जो उनकी कैपिटल सिटी थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, वहां पे आपके अचानक से फ्रेंच ज्यादा हो जा रहे थे और थोड़े बहुत ही 80% के साथ मेजोरिटी फॉर्म कर रहे थे, जो कि पूरे नेशन के मेजोरिटी से डिफरेंट था। तो अगर सेंटर ही मतलब एक ही गवर्नमेंट आप पूरे देश के लिए बना देते हो तो वो कैपिटल सिटी पे उसकी पॉलिसी शायद बहुत ज्यादा हेल्पफुल ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ पॉलिसीज डच को हेल्प करने के लिए बना रही हो या ऐसी बना रही हो जो डच के लिए मीनिंगफुल हो ज्यादा या उनके रिक्वायरमेंट को सूट करे, विच विल बी द मेजोरिटी इन द एंटायर नेशन। तो वो पॉलिसीज ब्रुसेल्स में मेक सेंस नहीं करेगी एंड विल प्रोबेबली बैकफायर, है ना, बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि वहां पे फ्रेंच ज्यादा है। तो बेल्जियम ने इस बात को समझते हुए क्या किया, गवर्नमेंट ही अलग कर दी। उन्होंने बोला पूरे देश की एक गवर्नमेंट होगी जिसमें 50-50 दोनों हिस्सों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, फ्रेंच और डच के, लेकिन इस सेंटर गवर्नमेंट के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। हम कुछ रीजनल गवर्नमेंट्स बनाएंगे कि जिन रीजन में डच है सिर्फ, वो अपने हिसाब से वहां पे उनके प्रॉब्लम्स को डील करते हुए पॉलिसीज बनाए, जिन रीजन में फ्रेंच है सिर्फ, वो उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाए। कैपिटल सिटी के लिए उन्होंने ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट बनाई और वहां पे भी 50-50 रखा दोनों का डिवीजन, लेकिन पॉलिसीज इस हिसाब से बनानी है कि वो पॉपुलेशन और मेजोरिटी के नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ठीक है। पहले भी इनके यहाँ रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं है कि एक बार जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन्होंने इस डिवीजन को, रीजनल गवर्नमेंट को बनाना शुरू किया, बट उनके रोल्स, उनकी जो पावर थी वो अलग तरीके से डिफाइन थी। बट जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के उनके रोल्स को चेंज किया, थोड़ा सा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कम किया, क्योंकि सेंटर पे अगेन जो उसका टेक होगा वो रीजन पे वैलिड हो ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पावर जो है सेंटर से लिया, बोला कि सिर्फ सेंटर के पास सारा पावर नहीं होगा, सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, और लेकर के रीजन्स में दिया, है ना, विड्रॉ किया सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी सी चीजें और डिस्ट्रीब्यूट कर दी टुवर्ड्स द रीजन। और ये चेंजेस चलते गए आपके ओवर पीरियड ऑफ 23 इयर्स फ्रॉम 1970s टू 1993, जहां पे हमने ये देखा कि रीजनल गवर्नमेंट को प्रॉपरली 93 में जाकर के 1993 में काफी पावर्स मिलते हैं, जहां पे उसकी डिपेंडेंसी और जो आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज्यादा अथॉरिटी थी रीजनल लेवल पे वो रिड्यूस की जाती है। तो हमें समझ आता है कि बेल्जियम गवर्नमेंट में पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह था, उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को फ्रॉम वन प्लेस लेकर के अलग अलग जगह पे बांटा जा रहा है, यानी कि पहले सेंट्रलाइज था एक जगह पावर, उसको डिसेंट्रलाइज किया, सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर्स में डिवाइड किया, है ना। और क्यों किया ये, ताकि बेटर तरीके से हम रीच कर सके अपने रीजनल रिक्वायरमेंट्स को, जो नेसेसरी हमेशा सेंटर को पता नहीं होगी, ज्यादा अकोमोडेशन कर पाने के लिए, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है कि वन शू फिट्स ऑल विल नॉट वर्क हियर, एक ही जूते में सब लोगों के पैर नहीं आएंगे, सबकी रिक्वायरमेंट, सबके साइजेस, सबका कंफर्ट अलग है। और अगर आपको सबको अकोमोडेट करना है, स्पेशली इफ यू आर क्लेमिंग टू बी अ डेमोक्रेसी, ये आपका, इट इज योर, मतलब आपका ओनस आपको लेना होगा, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट यू आर केटरिंग टू एवरीवन, राइट। श्रीलंका ने हालांकि क्या किया, दोनों एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उन्होंने अपने जो भी उनका पर्पस था, प्रैक्टिकली कह लो, डाइवर्स ये कंट्री भी बहुत था, और यहां पे भी हमने यही देखा कि सिन्हालीज थे ज्यादा, लेकिन एरिया में फिर भी डिविजन था। देयर वर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तमिलियंस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री मोर देन द सिन्हालीज, एंड दे कुड हैव आल्सो प्रोबेबली डन दिस, बट फॉर वट एवर रीजन दे वांटेड टू, दे डिसाइडेड टू गो विथ पावर बीइंग सेंट्रलाइज्ड जस्ट एट वन लेवल, ठीक है, एक यूनिट में ही सारा पावर समेट कर रखने की कोशिश की। हालांकि
तमिल लीडर्स ने जो है मांगा था ये डिमांड, अगर आपको याद होगा, दे वर आस्किंग फॉर अ सेपरेट ईलम. ईलम वाज अ स्टेट. दे सेड कि जहां पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हैं वहां पे हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट फॉर्म कर दो, हमें इस सेपरेट स्टेट में रहने दो. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वही फैक्टर थी जो एलिनेशन बढ़ा रही थी उनकी विद द सिन्हालीज, व्हिच फर्दर लेड टू द सिविल वॉर. बट दे केप्ट ऑन द पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस. तो अभी हमें दो तरह की गवर्नमेंट तो पिछले चैप्टर से ही समझ आ गई है. दो तरीके का जो गवर्नेंस का पॉलिसी है वो पिछले चैप्टर में ही समझ आ गया है. करेक्ट. नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के हमारे तमिलियंस जो है वो सेटल थे, कॉन्सेंट्रेटेड थे, और उन्होंने वहीं पे बोला था कि उनका सेपरेट ईलम, उनका सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, जिसको सिन्हालीज ने नहीं माना था. ठीक है. तो एनीवेज अब इससे हमें दो एग्जाम्पल्स मिल गई. एक जगह हमने देखा कि अलग अलग लेवल्स बन रही हैं, अलग अलग कैपेसिटी में पावर डिवाइड किया जा रहा है. कहीं पे इंडिपेंडेंस किसी गवर्नमेंट की ज्यादा इंक्रीज की जा रही है, लेकिन 100% इंडिपेंडेंट नहीं रखा जा रहा है, जैसे बेल्जियम में. और वहीं पे श्रीलंका में क्या हो रहा है, पावर एक ही जगह रखा जा रहा है, बिल्कुल भी उसको डिवाइड नहीं किया जा रहा है. एक ही जगह से रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नेंस हो रही है, और वो चाहे जो भी हिस्सा हो देश का, कितना ही डाइवर्स क्यों ना हो, वही पॉलिसीज बना रही है. उनका टेक ये भी था कि उनको अकोमोडेट नहीं करना था, वो मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो कर रहे थे, बट वो फॉर वॉट एवर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन, पर्सनल रीजन, जिस भी रीजन से उन्होंने किया, ये सिस्टम उन्होंने अपनाया. तो इससे हमें दो यहाँ पे सिस्टम नजर आए. उन दोनों सिस्टम्स को अब हम डिकोड करेंगे. तो सबसे पहला सिस्टम जो हमें नजर आया वो है फेडरल सिस्टम का, जहां पे हमने बेल्जियम में देखा कि शायद पहले पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी एक जगह पे, अब लेकिन पावर को क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया एट डिफरेंट लेवल्स, और डिवाइड कर दिया गया, है ना. डिफरेंट लेवल्स पे शेयर करके डिवाइड कर दिया गया. तो यही से हमारा कॉन्सेप्ट आता है फेडरलिज्म का. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे फेडरल सिस्टम फॉलो होता है. फेडरल सिस्टम इज शेयरिंग और डिविजन ऑफ पावर at various levels, at different levels. तो फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, वर्टिकल पावर ऑफ शेयरिंग भी जिसे हम कहते हैं, हमने क्योंकि पिछले चैप्टर में किया है तो यहां पे भी मैं लिखूंगी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है. ये उसे कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट में वेरियस लेवल्स होते हैं, और गवर्नमेंट में मोर देन वन लेवल होगा, यानी कि एटलीस्ट 2 और मोर लेवल्स, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा. ठीक है. और गवर्नमेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ नाम मात्र लेवल्स बना दिए हैं, दैट जस्ट फॉर द नेम सेक यू हैव द वेरियस लेवल्स. इट इज नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक. द पावर इज ऑल्सो डिवाइडेड, राइट. द पावर इज ऑल्सो डिवाइडेड. Now the power is also divided not again just by words but by law. By law and constitution. लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. ठीक है. तो पावर डिवाइड किया जाता है. अब कौन कौन से वेरियस लेवल्स होते हैं? एक सेंट्रल लेवल तो होगा ही होगा, है ना. एक सेंट्रल लेवल आपका होगा ही होगा. उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट और अदर लेवल्स कैन बी देयर. जैसे कि आपको अगर मैं एग्जाम्पल से याद दिलाऊं इस बात के, और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेंगे हम, तो बेल्जियम में हमने क्या देखा था? वी हैड सेंट्रल लेवल जो पूरे नेशन के लिए था. देन वी हैड रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट which was for the various regions, regional divisions. और एक और गवर्नमेंट थी. Can you guys recall what was one more level of government that was created in Belgium? There was one more level of government that was created
कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, वेरी गुड स्टूडेंट। बच्चों आपका नाम नहीं रहता है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपका स्पेसिफिक नाम लेकर बताना कि किस बच्चे ने बोला है, क्या बोला है। बट द अनदर आई नो दैट यू गाइज नो द आंसर, आई कैन सी इट। सो कम्युनिटी लेवल था। कम्युनिटी किसके लिए था? फॉर एथनिक ग्रुप्स, यानी कि जर्मन्स का अपना था, हमारा इनका क्या नाम है, जर्मन्स का अपना था, डच का अपना था, फ्रेंच का अपना था। तो हमने क्या किया, हर एक को अपना पावर दे दिया कि अपने लोगों के लिए देखो किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी जरूरत उस ग्रास रूट लेवल पे, उस बेसिक लेवल पे फुलफिल करो, क्योंकि हो सकता है सेंटर पे, स्टेट पे लोगों को एग्जैक्टली समझ ना आए। तो ये हमने क्या किया है, पावर दिया है सबको, थोड़ा थोड़ा पावर लेकर के सब में बांट दिया है। ठीक है, तो अब ये पावर किस बेसिस पे बट रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पावर जो है वो लॉ से और कॉन्स्टिट्यूशन से बट रहा है, तो उनके पास जो लोग हैं एथनिक ग्रुप्स के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, है ना। तो वेरी गुड। तो अब ये जो पावर डिवाइड हो रहा है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, ये कैसे होगा? तो आपको ये याद रखना है कि एक फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होंगे, यानी कि एक से ज्यादा तो होगा ही होगा, 2 मिनिमम होगा ही होगा। इट कुड बी मोर, जैसे इंडिया में भी हमें पता है हमारे पास सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट लेवल गवर्नमेंट है और हमारे पास लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है ना। ये जो ग्राम पंचायत, पंचायती राज, पूरी समिति चलती है, वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कैसा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है? एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जो पूरे नेशन के लिए है, एक उसके रीजनल डिवीजन के लिए है, और ये इंडिया का सेटअप बना हुआ है, बट ये और या तो लोकल हो सकता है या किसी और चीज को अकोमोडेट करने के लिए बना हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, जो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होगी, वो पूरे नेशन के भलाई के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्वॉल्व होगी। बाकी लेवल जो होंगे वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और अपने उस रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे हमारा लोकल गवर्नमेंट हो जाता है, ये अपने विलेजेस के लिए देखेगा, ये अपने स्टेट के लिए देखेगा, जिसकी जहां पे जिस ग्रुप को मॉनिटर कर रहा है। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने एथनिक ग्रुप्स के लिए देखेगा, दैट इज द आइडिया। हर एक गवर्नमेंट के जो पावर है वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट will have independent powers. ठीक है, उसमें कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। नो वन वुड इंटरफेयर इन ईच अदर्स area of jurisdiction. What do we mean by this? I will explain it to you. ठीक है, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रिलेशन हो सकता है लेकिन 100% नहीं होगा, आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये पावर कैसे डिफाइन होगी? तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि किसकी क्या पावर है, सेंटर की क्या पावर है, जो बाकी वेरियस लेवल से उनकी क्या पावर है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, because it is bounded to happen, in case of a conflict, जो जुडिशरी है वो इंटरडिपेंडेंट होती है और वो इंटरप्रेट करती है। यानी कि मान लो स्टेट को लग रहा है कि सेंटर मेरे एरिया में जबरदस्ती घुस रहा है, मेरे एरिया में इंटरफेयर कर रहा है, मेरे पावर्स को ओवर पावर कर रहा है, तो स्टेट हमेशा इस बात का क्लेम कर सकती है और जाएगी जुडिशरी के पास कि हमें इंसाफ दो। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेगा और इंटरप्रेट करेगा और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। इंडिपेंडेंट होना जुडिशरी का क्यों जरूरी है? जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो और किसी लेवल से इन्फ्लुएंस्ड है तो वो उसके फेवर में देगा अपनी जजमेंट, है ना। दे विल गिव देयर जजमेंट इन फेवर ऑफ, लेट्स से अगर वो सेंटर से इन्फ्लुएंस है तो वो सेंटर के फेवर में देगा, स्टेट से इन्फ्लुएंस है तो स्टेट के फेवर में देगा। दैट विल बी द प्रॉब्लम।
आपकी हर एक तरह की चीजें डिवाइडेड होती है, ऑल पावर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर्स इज वेल, यानी कि फाइनेंशियली भी हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं हर एक लेवल को। क्योंकि आपको मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो मम्मी ने एक बॉक्स ऑफ पेंसिल बचपन में ला करके दिया, आप सबके सिबलिंग्स होंगे, कुछ आप में से सिंगल चिल्ड्रन भी होंगे, लेकिन कजन्स वगैरह होते ही हैं, आप कभी ना कभी इंटरेक्ट करते ही हो। तो अगर बड़े भाई बहन है या अगर आप बड़े हो तो आपने भी ये किया होगा, मम्मी ने एक पेंसिल का बॉक्स दिया, इसमें 20 पेंसिल्स थी और एक इरेजर और एक शार्पनर, ऐसा ही आता है ना बॉक्स। तो मम्मी ने तुम्हें बचपन में दिया कि ये लो, आपस में तुम और छोटे भाई बहन बांट लेना, या बड़े भैया बहन को दिया कि तुम्हारे साथ बांट लें। हमेशा बड़े भाई बहन ये जरूर करते हैं अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी जमाने के लिए, ये शार्पनर और इरेजर मेरा, दो एक्स्ट्रा पेंसिल्स मेरे, तुम्हें आई कीप 12, यू हैव 8, आई कीप 11, यू हैव 9, है ना। 10 का डिवीजन हमेशा नहीं होता है, थोड़ा सा हमारा हक मार कर ले जाते हैं, कुछ ना कुछ डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों, ओ आई एम द सीनियर वन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है क्योंकि यहाँ पावर की एग्जिस्टेंस तो ऐसे लेवल वाइज हो रही है ऑर्डर है, सेंटर ऊपर है स्टेट के, ये तो फैक्ट है, कितने भी इनकी पावर डिवाइड कर दो। तो सेंटर अपनी अथॉरिटी बीइंग द हायर गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है बड़े भाई बहन की तरह कि तुम 9 रखो, मेरे पास 11 रहने दो, ठीक है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली विथ मनी एंड बजट, क्योंकि बच्चे आपको सेंटर को भी बजट चाहिए, स्टेट को भी बजट चाहिए, गवर्नमेंट पैसों के साथ ही तो भलाई करेगी ना, गवर्नमेंट डेवलप करेगी नेशन को, सिटीजन्स के लिए काम करवाएगी, रो सड़कें बनवाएंगी, स्कूल्स बनवाएंगी, हॉस्पिटल्स बनवाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगी, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। So because everything requires money, the finances become a very very important concerning matter. So financial power भी जो है वो भी इन यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है और क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है कि इसका बजट ये, इसका बजट ये। सो बेसिकली होता क्या है, आप देखोगे टैक्स कलेक्शन दोनों को अपना अपना करना अलाउड होता है, और जहां पे अगर कंबाइंड कलेक्टिवली हो भी रहा है तो वो बराबर में डिवाइड होता है विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर हम जीएसटी, आपने अगर कभी किसी बिल को देखा होगा, जब आप जीएसटी देते हो तो आप दो तरह का जीएसटी देते हो, उसमें डिविजन लिखा रहता है, एक आप सीजीएसटी देते हो और एक आप एसजीएसटी देते हो, यानी कि सी फॉर सेंटर, एस फॉर स्टेट। एक स्टेट को जीएसटी देते हैं, एक सेंटर को देते हैं, दोनों का ऐसे 5-5% बटा रहता है, तो कंबाइंड हम 10% जीएसटी दे रहे होते हैं किसी सामान को खरीदने में। जैसे होटल में खाना खाओ तो आप में 5% इसका जीएसटी, 5% उसका जीएसटी, ऐसे करके 10% आप टैक्स दे रहे हो, तो 5% गवर्नमेंट स्टेट सेंटर को जा रहा है, 5% स्टेट को जा रहा है, ताकि कल को चलकर इनके बीच में लड़ाई ना हो कि भैया ये पैसे मेरे, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, तुमने मेरा रख लिया, तुमने पेंसिल ज्यादा रख ली, ये वाले इशू नहीं होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइंड है कि फाइनेंसेस कैसे होंगे, सबके पावर्स क्लियरली डिफाइंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी अकेले बदल नहीं सकता, यानी कि अगर सिर्फ सेंटर चाहे कि वो चेंज कर ले तो नहीं हो सकता, अगर सिर्फ स्टेट चाहे कि वो चेंज कर ले तो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी डन यूनिलैटरली, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैज टू कम टुगेदर। व्हाई? क्योंकि अगर मान लो हमने किसी एक लेवल को ये अथॉरिटी दे दी होती कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को एवरी नाउ एंड देन बदलते रहते, जो दूसरे के फेवर में नहीं होता। तो ये होता है फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? यूनिट वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, यूनिटरी मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यूज करते हैं ना मैथ्स में, जब हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, हम वो फिर सिस्टम फाइंड करते हैं कि अगर 10 का प्राइस 100 है तो 1 का प्राइस 100/10 होगा, तो 5 चीजों का प्राइस जो है 100/10 इंटू 5 होगा, ऐसा करके सिस्टम आप देखते हो, है ना। एनीवेज, सो यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड यूनिट, यूनिट एज एन अ सिंगल यूनिट, वन यूनिट और सिंगल यूनिट, ठीक है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल अपोजिट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यूनिट से वर्ड आता है। इसका मतलब सिंपल और काफी सीधा है कि एक ऐसी गवर्नेंस होगी जहां पे सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक ही गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जो पूरे नेशन के लिए इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे कोई भी नो पावर डिविजन विद अदर लेवल्स, नो पावर division with other
लेवल्स, दूसरे लेवल्स के साथ कोई डिविजन नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाई करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन दे नीड मोर लेवल्स और यूनिट्स, इनको थोड़े से जो है डिविजन करने की जरूरत है यूनिट्स की, कि मतलब सेंटर पे है बट किसी को मॉनिटर करने के लिए एक स्टेट में, एक सिटी में भी कुछ लगाया, लेकिन वो जो भी फर्दर लेवल्स बनेंगे, ठीक है, जो सब लेवल्स बनेंगे फर्दर, ठीक है, उनके पास कोई भी पावर नहीं होगा, नो पावर ऑफ देयर ओन। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल पावर, जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी सब डिवाइड किया जा रहा है। यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सारी पावर एक ही के पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए सिर्फ पावर डिवाइड कर दिया जाता है। ऑल इन ऑल जो है वो सेंटर ही रहता है। ऑल इन ऑल कौन रहता है, सेंटर ही रहता है। सेंटर ही हमेशा आप समझो कि बाप है, सेंटर इज ऑल। सो ये पावर्स जो हैं सेंटर की मर्जी पे होगा, वो उन यूनिट्स को देना चाहता है कि नहीं, या फिर लिमिटेड पावर्स देना चाहता है। और अगर लिमिटेड पावर्स भी दिए हैं या ज्यादा पावर्स जैसे भी दिए हैं, अगर सेंटर का मन हो तो वो कभी भी उन पावर्स को वापस भी ले लेता है। तो ये सब कुछ उनकी मन मर्जी पे डिपेंड करता है, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं कर सकता। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो भी है वो पहला वाला है ना। तन्मय, एक्चुअली दिस इज वेरी मच लाइक द फर्स्ट चैप्टर ओनली, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आप ये समझ लो कि उसको हम फर्दर डिटेल में जाकर के एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने आपको फेडरलिज्म और यूनिटरी बहुत डिटेल में समझाया। अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। Okay, guys, coming back, very simple question. This was federalism, a system of governments in which there is no division of power between the center and the states. The entire chapter is about it. So we know for a fact that the statement is wrong. ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। The correct answer would be false because there is federalism का मतलब ही है power division is there, right? So Gaurangi, Ishwari, all my dear students, Tanmay, very good, you guys, ठीक है। Now moving on. What are the key features, characteristics और क्या क्या इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं जो हमारे फेडरलिज्म के होते हैं। क्योंकि हमने यूनिटरी सिस्टम भी समझ लिया कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, कोई भी पावर डिवाइड नहीं किया जाता। बट फेडरल सिस्टम में सेंटर जो है मतलब देखो, ऑफ कोर्स फेडरल सिस्टम में एक चीज हमें ये भी याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ज्यादा पावरफुल, हो सकती है ज्यादा पावरफुल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा स्टेट को हमेशा ऑर्डर नहीं दे सकता है हर चीज में कि तुम ये करो, तुम वो करो। स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स होंगे, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आंसरेबल नहीं होगा। ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा कि किस तरीके का फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है। दोनों के अपने सेपरेशन होंगे पावर में, ठीक है। तो अब हम कुछ की फीचर्स देखते हैं, और फीचर्स में मैं बहुत ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन में नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने फेडरलिज्म और यूनिटरी को आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो सबसे पहले एक की फीचर अगर फेडरलिज्म का ले ले तो हमें समझ आता है दैट देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या समझ आता है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। या तो 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होंगी, यानी कि द वेरी डेफिनेशन। अगर 2 नहीं हुई, एक है तो वो यूनिटरी है, अगर 2 है तो ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। और हर एक टियर की अपनी जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। तो पहला फीचर क्या हो गया,
दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। दूसरा फीचर क्या हो गया, हर एक लेवल के पास अपने पावर्स होंगे। पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिटरी से हमें क्या समझ आया, यूनिटरी में भी डिविजन ऑफ लेवल्स हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हर एक लेवल के पास अपनी अथॉरिटी नहीं होती है, पावर नहीं होती है, सेंटर जब भी चाहे उस पावर को वापस ले भी लेता है। तो ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, सबके पास अपनी पावर होती है। लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग, ठीक है, तो किन किन लेवल्स पे होता है लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन से हमारा मतलब है लॉ मेकिंग में, तो जैसे स्टेट अपने लॉज बनाती है, कई जगह इंडिया में आप देखोगे कि कुछ लॉज स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट दे इम्पोज स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे कि रोड टैक्स दिल्ली में अलग है, झारखंड में अलग है, कर्नाटका में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, वो डिसाइड करती है कि वो रोड के लिए जब कोई व्हीकल परचेज कर रहा है तो रोड टैक्स वो कितना लेगी, ठीक है। तो ये जैसे टैक्सेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। लॉ मेकिंग, लॉज अलग अलग जगह पे, जैसे अभी उत्तराखंड में हमने सुना कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ सबके लिए लगेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बना दी हैं जो कि बाकी स्टेट्स में नहीं है बट उत्तराखंड में एप्लीकेबल है। तो टैक्सेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा होता है, कुछ स्टेट्स में क्या बोलते हैं विधान परिषद भी होता है ना। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बस, बट कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, हालांकि उसके अपने कैटेगरीज अपनी क्राइटेरियाज हैं, बट द पॉइंट इज कि सबके एरियाज ऑफ रूलिंग क्लियरली डिफाइंड है, सबका जुरिस्डिक्शन क्लियरली डिफाइंड है, सबको पता है कि किसका क्या है। तो जुरिस्डिक्शन मतलब वो एरिया जहां पे किसी के पास अथॉरिटी है ना। तो सेंटर की किन चीजों पे अथॉरिटी है, स्टेट की किन चीजों पे अथॉरिटी है, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से हम डिवाइड करके बता देते हैं। नेक्स्ट फीचर तीसरा हमारा आ जाता है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो रिस्पेक्टिव लेवल्स जो है और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो मैंने कह दिया कि अरे तुम्हारे 5 पावर है, तुम्हारे 6 पावर है, ठीक है। अब मैंने कह दिया, कहीं भी चीज याद नहीं रहती या कई बार फॉलो नहीं होती, उस चीज पे लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को क्लियरली रिटन फॉर्म में बाय लॉ इम्पोज्ड रहना बहुत जरूरी है, सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। ये हम बहुत बार पहले भी आज के ही सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे मैं और ज्यादा कुछ भी नहीं ड्वेल करूंगी, मैंने सिंपल सा आपको बता दिया है। दोनों के पावर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली रिटन रहते हैं, ताकि ना सेंटर को ना स्टेट को ना जो भी दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो उसे कोई कंफ्यूजन हो, उसे कोई प्रॉब्लम हो, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो लॉ रिटन है वहां पे क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए रिटन फॉर्म में। और अगर कहीं पे कभी कॉन्फ्लिक्ट हो भी गई तो जुडिशरी उसे सॉर्ट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरी पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सरकार है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करती है सबका पावर सब कुछ। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कि आपका ये पावर है, आपका ये पावर है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। करेक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी सबऑर्डिनेट ना हो, सबके लिए पावर डिफाइंड हो, कोई एक दूसरे की पावर को एक्सप्लॉइट ना करे। फोर्थ होता है हमारा कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से चेंज नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर सिर्फ सेंटर चाहे कि किसी चीज को बदल दे तो नहीं बदल सकता, सिर्फ स्टेट चाहे तो नहीं बदल सकता है, बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे कि इंडिया में क्या सिस्टम है, आपको पहले बोथ द हाउसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा विधानसभा एंड राज्यसभा, दोनों से क्लास 9 में हमने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, विधानसभा और राज्यसभा दोनों से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए वो चेंज का बिल पहले। उसके बाद मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स हैव टू रिमिट इट, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स हैव टू से यस टू दैट चेंज, ओनली देन दैट चेंज कैन बी इंप्लीमेंटेड। यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों की वॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों नहीं बोल रहे हैं तो वो चेंज नहीं इंप्लीमेंट होगा। ताकि कोई भी एक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम लॉ है, अगर उसको ही कोई भी बदल देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो वहां पे आपको बाउंडेशंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फंडामेंटल बेसिक नीड है। फोर्थ पॉइंट का ही एक्सटेंशन हमें यहाँ पे भी दिया गया है कि फंडामेंटल जो भी प्रोविजंस हैं, ये फोर्थ पॉइंट ही है, वो दोनों का कंसेंट रिक्वायर करता है, कोई भी यूनिलैटरली यानी कि जस्ट बाय वन लेवल चीजों को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अगर भैया
देखो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रखवाला है हमारे देश में वो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट है, जुडिशरी है ना। तो अगर कोई कंफ्यूजन भी होती है तो आपके इंटरप्रिटेशन भी वही करेंगे। तो कोर्ट्स के पास पावर होती है कि जस्ट इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो उसका रेजोल्यूशन जो है वो उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट्स जो है हैंडल करेगी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या गवर्नमेंट का अपने आप से ही कॉन्फ्लिक्ट हो, दूसरे स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट हो, कैसा भी हो। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, पावर डिविजन एट डिफरेंट लेवल्स, ये सब कुछ जो है वो कोर्ट्स देखती है। हाईएस्ट कोर्ट जो हमारे यहाँ है, जो अंपायर की तरह एक्ट करती है इफ डिस्प्यूट इज देयर, इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, ठीक है, between different levels of government in their exercise of their respective powers, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली या हाई कोर्ट अगर जरूरत हुई तो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से वो कोर्ट इंटरवीन करती है और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ये कौन सी वाली चीज के बारे में है? ये फाइनेंसेस के बारे में। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि कोई भी एक जो है वो अपने आप को बड़ा बता करके ज्यादा पैसे रखने की कोशिश ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना करे दूसरे लोअर लेवल की। इस चीज को मद्देनजर रख करके क्या किया जाता है, दोनों के फाइनेंसेस भी प्रॉपरली डिवाइड कर दिए जाते हैं पावर्स के साथ, बिकॉज पावर एंड मनी गो हैंड इन हैंड। स्टेट को तुमने पावर दे दिया लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है, तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा अपने पावर का एडवांटेज उठाने का, एक्सप्लॉइट करने का स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बन जाएगी। तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर पावर अच्छे तरीके से गवर्नमेंट में नहीं कर पाओगे। तो दोनों के जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड है। दोनों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि कौन किसके साथ किस तरीके से डील करना चाहता है, कैसे पैसे करना चाहता है। तो दोनों के अपने सिस्टम है टैक्स कलेक्शन के, जैसे कि मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दिया, और फिर अपने उन्हीं फंड से वो अपने सिस्टम को जारी रखते हैं। तो फेडरल सिस्टम में हमें समझ आ गया। ओके, ये लास्ट हमारा हो जाएगा। लास्ट फीचर हमारा क्या हो जाएगा? सेवेंथ फीचर हमारा हो जाएगा कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। 2 मार्क्स में आप इसको बहुत बार देखोगे, हो सकता है 3 मार्क्स में भी देखो, जहां पे इसके साथ एक कोई एडिशनल क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि व्हाट इज द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म एंड डिफाइन 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 1 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ऐसे भी कंबाइन करके क्वेश्चन आता है। लेकिन डुअल ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको अच्छे से याद रखना है कि कभी भी फेडरल सिस्टम का डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले बच्चे, बेल्जियम के एग्जाम्पल से, इंडिया के एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं? कंट्रीज कई बार बहुत ज्यादा डाइवर्स होती हैं। आप हर एक लेवल पे जाकर के लोगों की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहते हो। तो जब आप लोगों को सेफ गार्ड करना चाहते हो, उनकी यूनिटी को प्रमोट करना चाहते हो कंट्री के, आप क्या करते हो? पावर शेयर करते हो। सो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी। नॉर्मली पीपल वुड फील दैट इफ यू आर डिवाइडिंग द पावर, हाउ इज इट प्रमोटिंग यूनिटी? दिमाग में आ सकता है ना कि अगर हमने पावर डिवाइड किया है तो आखिर ये यूनिटी प्रमोट कैसे हो रही है? यूनिटी तो शायद खत्म हो जाएगी, स्टेट्स अलग हो जा रहे हैं, सेंटर अलग हो जा रहा है। पर बच्चे, हमने पावर शेयरिंग से यही बात तो समझी है कि जितना आप पावर शेयर करोगे उतना कम कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब आपने पावर शेयर कर दिया, यहाँ पे स्टेट को बोल दिया कि आप अपने रीजनल लेवल के प्रॉब्लम्स को हैंडल करो, क्योंकि कर्नाटका का जो प्रॉब्लम है वो तमिलनाडु का नहीं होगा, तमिलनाडु का जो प्रॉब्लम है केरला का नहीं होगा, जो आपका यूपी का प्रॉब्लम है वो पंजाब का नहीं होगा, पंजाब का प्रॉब्लम राजस्थान का नहीं होगा। वहां के लोग, वहां की ज्योग्राफी, वहां का कल्चर, वहां का वेदर सब बहुत डिफरेंट है। तो दे एट एवरी पॉइंट इन टाइम वो अलग अलग पॉलिसीज को अपने इंप्लीमेंट करते रहेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल करते रहेंगे। जैसे पंजाब में मेजॉरिटी पीपल आर फार्मर्स, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मिनरल्स निकलता है, तो बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन उससे एसोसिएटेड है। तो इन सबका बहुत यूनिक आपका लोकल जो क्राउड है और जो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड है और कॉन्टेक्स्ट है बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर. सो अगर वैसी पॉलिसीज सिर्फ लोकल लेवल पे बन रही हैं तो वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रही है और दूसरों पे इम्पोज नहीं हो रही है. तो क्या हो रहा है, सब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, खुश रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाएगी. और बाकी जो यूनिफॉर्म रहना चाहिए पूरे देश के लिए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, तो ये सेफ गार्ड करेगी. और जब लोग खुश हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रही हैं, तो यूनिटी बनी रहेगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब बाकी दूसरे इंसान कितने भी मुझसे डिफरेंट हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है. मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, दूसरे इंसान की होती, तो मुझे प्रॉब्लम होती, तब मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता, तब मेरे लिए यूनिटी जो है वो हैम्पर होती, ऑब्स्ट्रक्ट होती. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी. तो दो चीजें कर रहे हैं हम यूनिटी बढ़ा रहे हैं, और कैसे बढ़ा रहे हैं, अकोमोडेट करते हुए रीजनल डाइवर्सिटी को, बिल्कुल लोकल लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हुए. तो दो एस्पेक्ट्स बन जाते हैं हमारे फेडरलिज्म के जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपका इन फेडरलिज्म. सबसे पहले गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल पे वो पावर शेयरिंग के लिए तैयार हो, रूल्स रेगुलेशंस वैसे ही बने. दूसरा, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना और अग्रीमेंट पे आना बहुत जरूरी है. अग्रीमेंट पे आ गए, फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आपको दो बहुत बड़े एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे हमारे फेडरलिज्म के. एक मिनट, कर्सर कहां गया मेरा. हाँ, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे हमें. टू इंपॉर्टेंट aspects of federalism. क्या ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फेडरलिज्म के? एक है म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ये नंबर 1. एंड नंबर 2, अग्रीमेंट. एक दूसरे के साथ अगर अग्रीमेंट नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी. अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ में काम करना, साथ में रहना, इस बात की अग्रीमेंट में रहना. ठीक है. तो ये सिंपल सा हमारा फंडा है. अब आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को कर देना आंसर. डैश हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. President, courts, Prime Minister, Governor. Dash have the power to interpret the constitution, and in terms of any problem these will be the point of contact for everyone. ठीक है. ओके, सुपर्ब. तो हम देख लेते हैं. वेरी नाइस अभय, गौरांगी, ईश्वरी, स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड. इट विल बी द कोर्ट्स. कोर्ट्स के पास ये पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया, दो क्रूशियल फैक्टर्स क्या हो गए हमारे. गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल पे वो अग्री करे कि हम आप एक दूसरे के साथ पावर शेयर करेंगे. सेंटर मना कर दे, सेंटर कहे नहीं हम पावर शेयर नहीं करेंगे, सारा पावर मेरा. स्टेट मना कर दे कि नहीं सारा पावर मेरा, तो दिक्कत हो जाएगी. तो दे हैव टू कम इनटू अग्रीमेंट एंड दे हैव टू ट्रस्ट ईच अदर. ओनली देन दे कैन वर्क विथ ईच अदर. ठीक है. अब हमारे पास काइंड्स ऑफ फेडरेशन रह गया है. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. बेसिकली कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. इसको मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी. ठीक है. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन. सो I'm gonna pause the session over here. और एक्चुअली कर भी सकते हैं, कर लेते हैं. ठीक है. कमिंग टुगेदर फेडरेशन. देखो बच्चे, नाम से समझ आता है कमिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है? पहले अलग अलग थे, अब साथ आ गए. तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि ये जो यूनिट्स थे ना, ये पहले
हाँ जी बच्चे, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ, ठीक है, आई विल जस्ट डू वन, द अदर वन विल डू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बैलेंस 50-50 हमेशा नहीं होती है, ये बैलेंस वेरी करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इंडिया में अलग है, बेल्जियम में अलग है, यूएस एक फेडरेशन है वहां पे अलग है, और ये बैलेंस डिटरमाइन होगा आपके कंट्री के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि कंट्री का बैकग्राउंड क्या है, और इस बेसिस पे हमारे पास दो तरीके से फेडरेशंस बनाई जाती हैं। एक जगह पे जहां पे सारे यूनिट्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी एक यूनिट पे उतने डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बिगर यूनिट के पास ज्यादा पावर है ऐसा नहीं होता है, और दूसरे में ऐसा होता है। तो हमारे पास दो बनते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूएस है, होल्डिंग टुगेदर का इंडिया है। इसकी डेफिनेशन हम फर्दर ड्वेल इन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट पास्ट द टाइम, सो आई एम गोना एंड द सेशन ओवर हियर, keeping the interest of time in mind. ठीक है, काइंड्स ऑफ फेडरेशन में coming together, holding together, let's dwell into the next session only. ठीक है, so everyone, on that note, thank you so much for being over here. I hope everything was clear to you. We are gonna get moved on to summarizing what we have done. So we understood that there are two forms of government apart from democracy in terms of power division at various levels. One is unitary system, जहाँ पे government का एक ही level होता है and there is no division of power. Then you have federal system of government where the government has one or two or at least two or more than two levels of government, and there's a proper constitutional division of power, and we read about the various features. Then we understood that there are different kinds of federations coming together and holding together, जिसका definition हम next session में further better discuss करेंगे। तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, जहां पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है जिन्हें स्टेट्स कहते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिकॉग्नाइज करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो हाउ इज इट दैट वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ फेडरेशन? क्योंकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं पे भी फेडरेशन, इंडिया एज अ फेडरेशन, ये नहीं लिखा हुआ है। तो इंडिया कैसे फेडरेशन बन गई जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। सो मेक श्योर टू फिनिश योर पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, मेक श्योर टू स्टे ट्यून, डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड विल सी each other in the next session. Till the next time, guys, do explore all the applications, and do not forget to get your doubts resolved and join the Telegram channel. The link and the code is right here. So thank you everyone for being here. Have a great evening. Take good care of yourselves. Bye bye. Hasta la vista. Bye bye. Ciao. I'll see you soon. Till the next time, stay safe and keep imbibing.